Everyone. We are gathered today for a special Diwali assembly for the students of grades 1 and 2. Being together gives us great joy. I'm sure you will all enjoy yourselves. Before we begin, may I request all of you to stay on mute and keep your cameras off unless asked to. Thank you. We will first begin with a few students from grades 1 and 2 to either speak, recite, sing, or dance and tell us something significant about Diwali. I will now hand you over to Ms. Tangri to start the assembly. Thank you, Ms. Tara Porwala, and a warm welcome to each and every one of you for this very special assembly for which we are celebrating due to Diwali and the beginning of the festive season. So we will now start with Anaisha Murarka of class 2B. Let's see what Anaisha has for us. Welcome, Anaisha. Good morning, friends and teachers. Today, I am going to be giving a speech about Diwali. Firstly, I should define why we celebrate Diwali. We celebrate Diwali for the arrival of Lord Ram, Hanuman and Sita coming back to Ayodhya after their 10-day battle with the demon Ravan, which signifies good over evil. Next, I am going to tell you how I celebrate Diwali. I wear new clothes. My mom helps me with the Diwali cleaning. I decorate the house by putting up flowers and doing rangoli. And finally, distributing gifts and eating sweets, of course. Unfortunately, we are not being responsible. We are bursting firecrackers, which causes two kinds of pollution, air pollution and sound pollution. Did you know that dogs can hear 10 times louder than us? Oh, those poor things. Even with one firecracker bursting, their ears will hurt so much. Firecrackers can also knock birds out of their flight. Also, humans can choke with the smoke of firecrackers. So let's promise this Diwali and the future Diwalis not to burst firecrackers. Thank you and a happy Diwali. Thank you, Anaisha. That was really insightful of you, and thank you for telling us what we do also impacts other creatures in our environment. Really, we must remember that. And now I will welcome Aaron Junjunwala of class 1B, who is also going to tell us something very important about the environment. Aaron, over to you. Good morning, everyone. My name is Aaron Junjunwala and I am from grade 1B. My friend has sent me this box of biodegradable firecrackers. They are also known as seed crackers. These are some of them. This is the rocket. This rocket shoots cucumber seeds when it's in the air. And this chakkar shoots out onion seeds. All of these firecrackers shoot out all kinds of seeds in the air. Next Diwali, get ready to see lots of additional trees. Thank you. Thank you so much, Aaron. And I think we are quite ready now to see a few more seeds and trees around us. And I now welcome Vian Raj Singh, who is going to show us something very interesting. He is going to show us how we can make environment-friendly rangoli so that we can use it without feeling guilty. Because as you know, rangoli is a very important part of Diwali. So over to Vian Raj from 1A. Good morning, friends and teachers. It's Diwali time. Hello, I'm Vian Raj Aditya Singh,
We are facing a lot of challenges because of environmental pollution. That's why each of us should do our own bit to save Mother Earth. For that, I'll be teaching you how to make eco-friendly Rangoli powder. You can use this powder to decorate your houses on Diwali. I've been doing this with my family for the past 2 years. Let's go. You need half a glass of water and you pour it in a bowl. Then I have food color. You put 2 drops. There are a lot of colors available. I have yellow. I put 2 drops and I put 5 teaspoons of corn flour. 1, 2, 3, 4 and 5. Then if the solution is not thick enough, you can add a little more of corn flour. Then you let it for dry overnight. Next morning, it will be like this. The flakes you will see which will come like this. Then you put it in the grinder and your Rangoli powder is ready. And make lovely Rangolis on Diwali. Happy Diwali! Thank you. Wow, Vian, that was really eco-friendly and quite easy to make. Don't you think, children? Thank you, Vian. I'm surely going to use it. And I'm sure some of our little friends here are also going to do that. Thank you, Vian. And now, moving forward, we have Myra Parekh of 2A who's going to recite a poem. Welcome, Myra. Good morning, my dear friends and teachers. I am Myra from 2A. Today is Diwali, one of my favorite festivals. That's why I'm dressed in an Indian attire and I've decorated my house, as you can see. For Diwali, I have written a poem in Hindi. I would love to share it with you. So let's start. दिवाली है आई, खुशियां संग लाई। एक है दिवाली की सीख, बुराई पर अच्छाई की जीत। बरसों से यही है एक रीत। तो चलो हम दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाएं, लेकिन फटाके नहीं, मिठाई और खुशियां बांटें। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। Happy Diwali! Thank you. Thank you, Myra. That was really a lovely poem. हाँ, चलो खुशियाँ मनाते हैं और सबके साथ अपनी खुशियाँ और मिठाई भी देते हैं, बांटते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर कोई हमें बता सके कि हम दिवाली मनाते क्यों हैं? ये तो अगर एक बड़ी सी गुत्थी है, कौन सुलझाएगा? अरे मुझे मिस रजनीश दिखाई दे रही है और मिस भट्ट आप भी तो हो। चलो मिस, आप दोनों मिलके हमें दिवाली की कहानी सुनाइए। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बच्चे भी बैठ गए हैं। चलिए मिस, प्लीज सुनाएंगे ना मिस? हाँ मिस बारूक, जरूर सुनाएंगे। मुझे तो कहानी सुनाना बहुत पसंद है और फिर राम जी के आने की कहानी बच्चों को पता होती है पर हर बार अच्छी लगती है। थैंक यू मिस। अब हम बैठ के सब आराम से सुनेंगे आपकी कहानी। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। गिव मी 1 minute, I'll share my screen
और मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा भी कर रही हूँ और फिर सब लोग रजनीश, आपको पता है हम बच्चों को भी बता सकते हैं. Children, at the top of your screen, if you can see those 3 dots, when Miss Rajneesh switches on her PowerPoint, you go to the 3 dots and you press focus. When you do that, the whole screen will show you the story. It will be like seeing in a theater, big screen. Miss Maru, are you able to see my screen, please? Yes, Miss. मैंने तो full screen कर दिया है. मिस अभी तो मुझे नीचे थोड़ी विंडो दिख रही है. आई थिंक हो जाएगा 1 सेकेंड में. देखती हूँ. ओके. तो बच्चों, मुझे लगता है सबको मेरा स्क्रीन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा. तो जगमग जगमग दीप जले, दीप जले, दीप जले, धरती पर तारे उतरे, धरती पर तारे उतरे, दीप जले, दीप जले, जगमग जगमग, जगमग जगमग, जगमग जगमग दीप जले. तो बच्चों, सोचो कि जगमग दीप कब जलते हैं. और वो तो हमको 4 बच्चों ने बहुत अच्छी तरह बता दिया कि दिवाली है और हम बहुत सारी खुशियां हमारे लिए वो लेकर आई है और हम खुशी मना सकते हैं. पर दिवाली की कहानी हम सबको थोड़ी थोड़ी पता है, बहुत सी बातें पता हैं, पर हर बार कुछ नया इसमें जुड़ जाता है. तो हम आज सुनते हैं दिवाली की कहानी. मैं शुरू कर रही हूं इसको अयोध्या से. तो बच्चों, ये अयोध्या नगरी है. हमको दिख रहे हैं लोग दिए जला रहे हैं. अयोध्या राम की जन्मभूमि है, जहां राम बड़े हुए. उनके मम्मा पापा वहां थे. राजा दशरथ, कौशल्या माता, कैकेयी, सुमित्रा माता सब थे. वो आज भी लोग हजारों करोड़ों दिए जलाकर राम के आने की याद में अयोध्या को सजाते हैं. अयोध्या का एक और नाम है साकेत नगरी. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी क्विज में आप जाएंगे तो आप बता पाएंगे कि अयोध्या को साकेत भी कहते हैं. और एक कवि ने लिखा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही. मतलब इतनी सुंदर है कि सज धज के जा रही है आसमान से मिलने. और ये देखो अयोध्या नगरी आज सुंदर सजी हुई. और यहाँ पर ये सरयू नदी बह रही है. ये उत्तर प्रदेश में है, हमारे ही देश में है, और सरयू नदी के तट पर बसी हुई है. यहाँ पर एक बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था दशरथ. राजा दशरथ अपनी 3 पत्नियों के साथ अयोध्या में रहते थे और वे बहुत खुश थे. उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. राजा अपने 4 पुत्रों को बढ़ते देख बहुत प्रसन्न होते. थोड़े बड़े होने पर, जैसे बच्चों आप सब बड़े होने पर पाठशाला जाते हैं, ठीक उसी तरह उनके 4 पुत्र अपने गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जंगल में गए और वहां पर उन्हें धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान मिला. और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे चारों के चारों वापस अपनी अयोध्या नगरी अपने माता पिता के पास लौट आए. जब वो अयोध्या लौट आए तो सब लोग बहुत खुश थे कि बच्चे पढ़ के आ गए. हम लोगों में से भी तो कुछ के जो बड़े भाई बहन हैं वो यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने गए हैं, और जब वो खूब पढ़ जाएंगे तो फिर वो आएंगे या छुट्टियों में भी आते हैं. पर एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और बोले, मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, मैं यज्ञ करता हूँ और राक्षस आकर मेरे यज्ञ को गंदा कर देते हैं. यज्ञ एक तरह की पूजा होती है जिसमें आग जला के ओम नमो स्वाहा बहुतों के घर में होती होगी समय समय पर, और वो की जाती थी दुनिया की भलाई के लिए. तो राजा ने कहा, ठीक है, आप उनके गुरु हैं, आप जो ठीक समझते हैं कीजिए. तो ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर चल दिए वन में.
और ताकि वो राक्षसों से उनकी वो कर पाए। वहां उन्हें खबर लगी कि राजा जनक ने स्वयंवर रचा है अपनी बेटी का, जिसमें लॉर्ड शिवा का बहुत सुंदर धनुष रखा हुआ है। तो राम लक्ष्मण बोले, गुरुजी क्या हम वो धनुष देखने जा सकते हैं? उनके गुरु विश्वामित्र उन्हें लेकर राजा दशरथ के राजमहल में पहुंचे। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव आपका स्वागत है, आपके साथ ये सुंदर राजकुमार कौन है? तो विश्वामित्र ने बताया, ये राम है, ये बहुत वीर हैं, पर बहुत नम्र, बहुत अच्छे, बहुत शांत हैं। और ये लक्ष्मण है, इनके छोटे भाई, जो अपने बड़े भाई का बहुत मान करते हैं। तो हमें भी अपने सिबलिंग्स को बहुत प्यार करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। राजा जनक बोले कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? इतने राजा आए हैं गुरुजी, पर कोई भी धनुष को हिला ना पाया। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम आप जाइए और शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। बच्चों, वो तोड़ने नहीं गए थे, प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने गए थे। राम गुरु की आज्ञा से धनुष के पास गए, झुककर प्रणाम किया और बहुत आसानी से धनुष को उठा लिया। अरे, और फिर उन्होंने उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने डोरी चढ़ाने की कोशिश की, धनुष टूट गया और उसकी आवाज आकाश में, धरती पर, पाताल में, तीनों लोकों में गूंज गई। देवताओं ने देखा, वो बहुत खुश हुए कि शिव का धनुष टूटा है। अरे, किसी के चीज टूटने पे क्यों खुश हुए? वो इसलिए खुश हुए कि धरती पर राम जैसे वीर हैं और सीता का अब विवाह हो पाएगा। सीता वरमाला लेके आई और राम से उनकी शादी हो गई, विवाह हो गया। राम अपनी सीता को लेकर वापस आ गए और अयोध्या में राजा दशरथ राम को देखकर बहुत खुश हुए। बोले, राम अब आप बड़े हो गए हैं, आपका विवाह भी हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि अब आप राज्य संभालिए और मैं आपको राजा घोषित करता हूँ। कोरोनेशन जिसको कहते हैं ना, राज तिलक करता हूँ। तो राम ने अपने पिता की आज्ञा मानी। सबने कहा राम राजा बनेंगे। सब बहुत खुश थे कि राम राजा बनेंगे। दूर दूर से लोग राम का राज तिलक देखने आने लगे। जय जय तुलसी, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण, जय श्री राम, जय जय तुलसी, जय श्री राम। लोग गा रहे थे, भजन गा रहे थे और अयोध्या आ रहे थे। पर हम जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। राम की माता कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि आप राम को वनवास जाने के लिए राजा से कहिए, वनवास भेजने के लिए कहिए और अपने बेटे भरत को राजा बनाइए। कैकेयी पहले तो ना मानी, पर कभी कभी जब कोई हमें गलत बातें बताता है तो हम कभी कभी मानने लगते हैं और उन्होंने राजा से अपने वचन मांगे। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ, पर राम 14 साल के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए। वो राजा वाले क्लोथ्स नहीं पहने थे, अब तो वो सादे कपड़े पहने हुए थे। तो उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ चली और लक्ष्मण भी। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, उन्हें रोकना भी चाहते थे, पर राम ने कहा आपने वचन दिया है माँ को, मुझे जाना ही है। उनको लेकर सुमंत्र उनके सारथी लेकर चल दिए, सरयू नदी पार की। इसके बाद तीनों राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए वन में निकल गए। बच्चों, वन का जो जीवन होता है वो बहुत आसान नहीं होता है। उन्हें रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और परंतु राम, लक्ष्मण और सीता बिल्कुल भी डरे नहीं। वे तीनों महलों में रहने के आदी थे। उन्होंने बचपन से अपना जीवन बड़े महल में बिताया था, परंतु इस जंगल में आकर उन्हें एक पर्णकुटी में रहना पड़ा। पर्णकुटी बच्चों, जो पत्तों से बनी हुई कुटी होती है, उसे हम पर्णकुटी कहते हैं।
और जहाँ पर जंगल में उनके साथ जानवर भी रहते थे। और वहीं से रावण ने आकर सीता का अपहरण कर दिया और वे उसे आकाश मार्ग से अपनी लंका ले गए। राम और लक्ष्मण बहुत उदास हुए। वो जगह जगह सीता को ढूंढ रहे थे, पर तब कम्युनिकेशन तो होता नहीं था जो वो किसी से पूछते कि किसी ने क्या देखा। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण आकाश के मार्ग से उन्हें लंका ले गया है। हनुमान जी उन्हें मिले। हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। बच्चों ध्यान रखना, ये भी जीके की बात है कि हनुमान उन्हें कहाँ मिले थे। हनुमान जी ने राम के चरण स्पर्श किए। वो राम के परम भक्त थे। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। बोले, हम सब वानर हैं, पर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। मैं अपनी पूरी वानर सेना से कहता हूँ कि वो ढूंढे कि सीता को लेकर रावण कहाँ गया है। हनुमान जी जगह जगह ढूंढते हुए और पहुंच गए लंका। जब वो रावण के दरबार में पहुंचे, उन्होंने देख लिया था कि सीता अशोक वाटिका में है। वो रावण के दरबार में पहुंचे तो देखो क्या हुआ। रावण की जो लंका थी वह सोने की बनी थी और हनुमान जी वहां पर दूत बनकर गए थे। दूत इस मैसेंजर बच्चों जो मैसेज लेकर जाता है। जैसे पहले के जमाने में टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो हम लोगों को भेजते थे अपना कोई संदेश देने के लिए। तो ठीक उसी तरह राम जी ने हनुमान को भेजा था संदेश के लिए। और लंका जो थी वो बहुत सुंदर थी, परंतु जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो रावण ने उनका अपमान किया और उन्हें बैठने के लिए कोई आसन भी नहीं दिया। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से ही बड़ा सा एक आसन बना लिया और उस पर बैठ गए। इसे देखकर रावण के दरबार में सारे के सारे दरबारी अचंभित रह गए, इतनी लंबी पूंछ। तब रावण ने अपने दरबारियों से, मंत्रियों से कहा, पकड़ो इस बंदर को और इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही रावण के दरबारियों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगानी शुरू की, तो हनुमान जी उस जलती हुई पूंछ से लंका को जलाने लगे। और लंका को जलते देख वहां के लोग रुक गए, शोर मचाने लगे और इसे बचाने के लिए पानी डालने लगे। कहते हैं कि लंका को हनुमान ने जलाया, पर हनुमान ने तो केवल पूंछ से उसे जलाने की कोशिश की। जैसे जैसे पूंछ घुमाते लंका और चमकती जाती, क्योंकि लंका जो थी वह सोने की बनी थी। हनुमान जी समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इसे जलाने का प्रयत्न कर रहा हूं, पर ये तो और चमकती जा रही है। और पता है बच्चों, जो सोना होता है वो जलने पर और निखरता है। उसी वक्त आसमान में से यम और कली कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने लंका को जलते देखा तो हनुमान जी से कहा कि अगर आपको रावण को सबक सिखाना है तो लंका को काला कर देते हैं। तो कली ने उस पर अपनी निगाह डाली और उसे पूरा काला बना डाला, पर रावण जो था वो फिर भी नहीं माना। उसने कहा कि मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा। और बेचारे हनुमान जी को निराश होकर वापस आना पड़ा। अब राम के पास और कोई चारा नहीं था। उनको समुद्र पार करके, तुमको तो पता है ओशन कितना बड़ा होता है, सी कितना बड़ा होता है। आज तो हमारे पास शिप हैं और हम तो आज सी पर पुल भी बना लेते हैं। बना है ना अपना वर्ली सी फेस पे पुल, कितनी जगह बना है। पर तब ये संभव नहीं था। इतना बड़ा पुल उन्हें वो कैसे बनाए। और सबसे पहले राम ने लॉर्ड शिवा की रामेश्वरम में पूजा की कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस समुद्र को पार कर पाऊं। वानरों ने हार नहीं मानी। बोले, हम आपके लिए पुल बनाएंगे और यहाँ से वहां तक आप लंका पहुंच जाएंगे। राम चले देखो राम चले, राम चले देखो राम चले, साथ उनके हनुमान चले, हनुमान चले, हनुमान चले। सागर उनकी राह था रोके, एक एक पत्थर वानर फेंके, लिख कर राम का नाम जो डाला, लंका तक
का पुल बना डाला, लिखकर राम का नाम जो डाला, लंका तक का पुल बना डाला। राम चले देखो राम चले, वानर सेना लेके चले। राम चले देखो राम चले, वानर सेना लेके चले। राम लंका पहुंच गए और वहां पर उन्होंने फिर से अंगद को भेजा रावण के पास संदेश लेके कि वे अब भी मान जाएं, युद्ध से कुछ नहीं होता, युद्ध में लोगों को की जान जाती है, युद्ध बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो अंगद वहां पहुंचे राम का संदेश लेके कि युद्ध ना किया जाए, आप सीता माता को वापस कर दीजिए। रावण जोर से हंसा, बोले भला बंदरों की सेना लेकर जो आया है वो भला मुझे क्या हराएगा। तो अंगद ने कहा, हाँ राजा शायद आप ठीक हैं, पर मुझे देखिए मैं भी एक बंदर हूं, मैं अपना पैर जमाता हूं, अगर आपके वीर सैनिक मेरा पैर हिला लेंगे तो आप जीत जाएंगे, पर अगर आप मेरा पैर ना हिला पाए तो आप माता सीता को राम को वापस दे देंगे। अंगद खड़े हो गए, रावण का पुत्र मेघनाद आया, उसके सैनिक सेनापति आए, सब ने उनका पैर हिलाने की कोशिश की, पर अंगद का पैर कोई ना हिला पाया, यहाँ तक कि 4 लोग भी उसे खींचते रहे और गिर गए। तब भी रावण को समझ में नहीं आया कि वो क्या करने जा रहा है और वो माना ही नहीं। तो आज भी लोग कहते हैं अंगद की तरह पैर जमाना, जब हम डिटरमिन होते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम उसको कहते हैं अंगद की तरह पैर जमाना। तो चलो देखते हैं क्या हुआ। सर सर बाण चले, राम चले देखो राम चले। बाण चलने लगे और एक दूसरे की सेना पर बाण चल रहे थे, पर सब कुछ तो नहीं अच्छा हो सकता ना। अचानक लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति लगी और वो बेहोश हो गए। अब क्या करें, राम दुखी हो गए, उनके भाई मूर्छित थे, क्या करें। तब हर जगह ऐसे आसानी से दवाइयां नहीं मिल जाती थी कि स्टोर पे गए और दवाई ले ली। हनुमान बोले, राम आप चिंता ना करें, मैं बुला कर लाता हूं वैद्य सुषेण को और वो बताएंगे कि क्या करना है। वैद्य सुषेण ने कहा कि वो तो सिर्फ संजीवनी से ठीक हो सकते हैं जो बहुत दूर पहाड़ों पर है। हनुमान बोले, मैं सुबह होने से पहले संजीवनी अवश्य ले आऊंगा, और वे चल दिए संजीवनी लेने। उस पर्वत पर पहुंचकर वे पहचान नहीं पाए कि कौन सी हर्ब है संजीवनी, सब उनको एक सी पत्तियां लग रही थी। तो उन्होंने देर नहीं की और पूरा पर्वत लेकर वो चल पड़े। वो जा रहे थे राम के पास, रास्ते में अयोध्या पड़ी। आपको तो पता है ना, उत्तर प्रदेश नॉर्थ में है और वो वहां से पहाड़ से आ रहे हैं और सी तो बिल्कुल उधर साउथ में है। तो जब वो जा रहे थे अयोध्या में, भरत ने देखा उन्हें आकाश से जाते, वो समझे कोई शत्रु है, उन्होंने बाण मारा और हनुमान को नीचे आना पड़ा। तो हनुमान ने बताया कि आपके भाई मूर्छित हैं, मैं उनके लिए दवाई लेकर जा रहा हूं। तब कम्युनिकेशन नहीं था, भरत को ये सब कुछ नहीं पता था, पर वो अपने भाई के लिए बहुत व्याकुल हुए। हनुमान संजीवनी लेकर पहुंचे और लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई। युद्ध फिर शुरू हो गया। चढ़ा युद्ध भारी, छिड़ा युद्ध भारी, जली लंका सारी, अंत में रावण की सेना ही हारी, अंत में रावण की सेना ही हारी। राम ने रावण की नाभि में जो तीर मारा, रावण धरती पर गिरा और फिर राम की विजय हुई। 14 वर्ष बीत चुके थे। राम अब पुष्पक विमान में बैठकर अपनी अयोध्या वापस आ रहे थे। उनके साथ हनुमान, लक्ष्मण और अंगद थे। जब वो वापस आने की खबर सुनी, सारे अयोध्यावासी खुश हो गए। राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, और राम आकाश मार्ग से आ रहे हैं। उन्होंने अपने घरों को खूब सजाया, रंगोली बनाई, तोरण बनाए, दीपक जलाए, और उन्होंने सोचा राम कहीं दिन में ना आए, रात में आए, तो दीपक जला दिए। सोचा अगर धरती से ना आए, आकाश से आए, तो उन्होंने आकाश दीप तान दिए और बड़ी खुशी से वो राम का इंतजार करने लगे। और राम के आने पे दिवाली मनाई जाती है। ये राम का दरबार है। जब राम आए तो भरत ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया और राज तिलक हुआ। और जब उनका राज तिलक हुआ तो शिव, गणेश, नारद,
ब्रह्मा, सारे भगवान आए उन्हें आशीर्वाद देने। और जब इस तरह से राम दरबार, इसे कहते हैं राम दरबार, जब राम दरबार सजता है तो आरती गाई जाती है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज कर पद कंज, मुख कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये आरती गाई जाती है। और राम जो किंगडम थी, आज भी उसको राम राज्य कहा जाता है। वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, लोगों की भलाई करने वाला राज्य था। तो उस दिवाली की याद में हम आज भी भगवान राम की और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। और यहाँ देखो, ये सब बच्चे तो आप जैसे बच्चे हैं, वो दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और चारों तरफ उन्होंने सजाया है, रंगोली बनाई है। ये देखो, ये कंदील बना के लगता है टांगने ही जा रहा है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत दिवाली शुभ हो और आप दिवाली सेफली मनाइएगा। हमें पता है, आपको पता है कि नॉइस पोल्यूशन और एयर पॉल्यूशन नहीं करना है, हवा को प्रदूषण से बचाना है, वो हमारी प्राणवायु है। स्टैंडर्ड 2 के बच्चे भी जानते हैं प्राणवायु क्या होती है, जो ऑक्सीजन है। अगर हम एयर पॉल्यूशन करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आप सब समझदार हैं, दिवाली मनाइए, खुशी से मनाइए, मम्मा पापा की हेल्प कीजिए, पर एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन से बचिए। तो सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मनाना। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। वाओ मिस, बहुत मजा आया है ना बच्चों। You know the thing about Diwali and the story of Diwali is every time you hear it, you learn something new. So thank you very much, Miss Rajneesh. Thank you very much, Miss Bhatt. And we really enjoyed the story. Thank you. और अब हम invite जी मिस। धन्यवाद मिस मारू। धन्यवाद। We now invite Arav Dhawan of 2A to tell us something about Diwali. Arav, welcome. Hello everyone. I am Miss, 1 minute, darling. Miss Rajneesh, if you can stop sharing your screen, please. Thank you. Yes, Arav. Hello everyone. I am Arav Dhawan from class 2A and I am so excited as it's Diwali time. Arav, want to switch on your camera? Arav, baby, switch on your camera, darling. Miss, my camera is on. Oh, is it? Then switch it off and switch it on again. Yeah, I did that. Can you see me? You know what we'll do, Miss? I think Arav, if you want, we'll ask another child to do this now. You quickly leave the meeting and come back. Then your camera will work. Do you want to try that, Arav? Yes, Miss. And Okay. then Miss Mathur, please make him a presenter after that. Thank you. Yes, miss. Yes, miss. Arav, जल्दी जल्दी जाके जल्दी जल्दी आना, ठीक है? Okay, we now have Dwisha and Nitya Vashi, and they are going to present to us a song and a dance. So over to 2A and 2B, the Vashi sisters. Arav, you can shut your camera now, beta. We can see you, but let Nitya and Dwisha finish. Thank you. Nitya, Trisha, just adjust your screen, child, a little bit so that we can see your faces. Okay, model from study.
It's nice. Now it's okay. नमस्ते, मैं हूँ द्विशा और मैं हूँ नित्या। आओ सुनते हैं एक दिवाली का गाना। आज अनोखी दिवाली आई, खुशियाँ ये भर भर के लाई। आओ मनाए, खुशी मनाए, आई 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 हैप्पी दिवाली। आज अनोखी दिवाली आई, खुशियाँ ये भर भर के लाई। आओ मनाए, खुशी मनाए, आई 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 हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, थैंक यू। Thank you Dvisha and Nitya and a very happy Diwali to you too. और बच्चों आज से हमारी छुट्टियां भी चालू होगी, इसीलिए हम भी खुशियां मनाएंगे। Arav, if you are back, we'll now hand over to you. Yes, we see you, Arav. Hello everyone, I am Arav Dhawan from class 2A and I am so excited as it's Diwali time. I love wearing this Indian attire for Diwali. Look at all the diyas and the toran behind me. Have you decorated your house? I have decided to celebrate an eco-friendly Diwali this year by not bursting any firecrackers. But, of course, I will do Lakshmi Puja and eat a lot of sweets. Would you like some? What are your plans for Diwali? Let us all enjoy the festivities and togetherness this Diwali. Wishing you a very happy and safe Diwali. Thank you. Thank you, Arav. Thank you for reminding us that we have to be safe and we have to take care of the environment. So, thank you very much. But children, you must remember, another reason to be safe is maintain safe distance. Okay? So, have fun and enjoy yourself at a distance. And now I hand you over to 1A's Nishka Agarwal. Welcome, Nishka. Hello everyone, my name is Nishka Agarwal and I am from 1A. I want to wish you a happy Diwali. I read a sentence in a book my teacher shared recently called Binny's Diwali, and I would like to share a message that was in that book. May the word you speak be as sweet as jalebis and as soft as pedas. Have a sweet Diwali. Happy Diwali. Thank you. A sweet Diwali to sweet Nishka also. Thank you very much, Nishka, for your lovely, sweet wishes, and may everybody's lives be full of sweetness this Diwali. And last but not the least is little Samaira Shah of 1B, who is going to present a dance. So, Samaira, I hope you're ready. Good morning, everyone.
Everybody and happy Diwali! Oops, sorry, I forgot I'm on camera. That was lovely, Samaira. It was a lovely dance. And happy Diwali to you too. And as you all know, children, no event is complete without song and Naach Gana. So 1A and 1B, some of the children have sung a special Diwali song for us. So Miss Mathur, if you could play that for us, it would be lovely. I'll just share my screen here, miss, and I'll play the song. Yes, miss. So that was. Thank you. Thank you so much, class 1A and 1B. And before we end, I would just like to tell you that everything you saw today, what the children spoke and what they did, was entirely their own idea. They were not told what to speak about. No script was given to them. They decided to speak what was in their hearts. So thank you very much, children. And I hand you over to Ms. Tara Porwala. Thank you, Miss Maruk. That was truly meaningful and enjoyable. A big thank you to all the presenters and teachers who have coordinated this event. On behalf of the chairperson, Mrs. Neeta Ambani, our vice chairperson, Mrs. Isha Ambani Piramal, and the entire faculty and staff of the AIS, I wish all of you and your families a very happy Diwali and a prosperous new year. May you enjoy yourselves with your loved ones, but please remember to take care and stay well and safe. We love you all and want you to be healthy and happy. Thank you. Before you leave this meeting and join your class calendared session 1, we have one more special surprise for you. May I request Ms. Munshi and the teachers of grades 1 and 2 to unmute their mics, switch on their cameras, and let's together wish our precious loved ones, our little students, a happy Diwali and to their families too. So 1, 2, 3, let's go.
Happy Diwali.